And from the A section, Keshav Thakur, roll number 28, Keshav Thakur. A section, Keshav Thakur, come forward. Turn on the mic. Turn on the mic. गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग बेटा। इस क्वेश्चन को, असर्शन रीजन को ध्यान से देखो। यस, चेक दिस असर्शन एंड रीजन। ठीक है। Assertion is saying the growth in the height of plant stop when it starts forming flower. Is it true statement के? Yes. Is this statement true? सब ध्यान से देखो पहले। ट्रू है। It's true. Reason: maximum energy is used in making reproduction, which is an energy consuming process. Everyone, pay attention. Is it true? ट्रू है। Yes, you are saying it's true. Why it's true? अब इसका रीजन बताओ। Why it's true? Yesterday we discussed about this. The growth in height of plants stop when it start forming flowers. Same is the case with the humans, animals also. हमने कल इसके बारे में पढ़ा था। जैसे जैसे हम ग्रो होते हैं, ठीक है, अभी तक टिल चाइल्डहुड मीन्स टिल 12 years of your age, your body was working on your height. ठीक है, आपकी हाइट पे, आपके साइज पे वर्क कर रही थी कि आपके हाथ, पैर, बाजू, मुंह सब इक्वल बढ़े। ऐसा ना हो कि आपके पैर बढ़ रहे हैं, हाथ वैसे ही रहेगी 2 साल के बच्चे जितने, आपका फेस जो है 4 साल के बच्चे जैसा, ऐसा ना लगे। सो एवरीथिंग वाज इंक्रीजिंग साइमल्टेनियसली, सब चीजें साथ साथ बढ़ रही थी। ठीक है, दैट वाज हैपनिंग। नाउ जब वो हो चुका होता है, साइज बढ़ चुका होता है, नाउ कम्स कहां पर एनर्जी लगती है? रिप्रोडक्शन में। So same with the plants also, the growth in height of plant stops when it start forming flowers, क्योंकि flower is a reproductive organ। सबने पढ़ा हुआ है, flower is a reproductive organ। तो now where they are spending their energy? On reproduction। तो रीजन क्या है क्यों रिप्रोडक्शन उसके बाद स्टार्ट हुई? Maximum energy is used in making reproduction, which is energy consuming process। सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है क्योंकि न्यू लाइफ हैज टू स्टार्ट, एक नई जिंदगी स्टार्ट होनी है। सो दैट्स व्हाई इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, सो दैट्स द रीजन। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, सो नाउ नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू आस्क। ठीक है, सो यस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट दिस आल्सो। हमने कल इसके बारे में भी डिस्कस किया था। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस वंस अगेन। इज इट डन? Yes, beta, is it done? Okay, you're noting down, note it down। इसको सही से लिखो, it can come in your exam also।
Okay, I hope it is done now. Yes, beta, I hope it is done. Okay, so now let's move further. Okay, so now let's revise once more menstruation cycle. ठीक है, जो हमने कल किया था. ठीक है. So first cycle जो phase है, that is menstrual phase. ठीक है, it lasts for 1 to 5 days. And what happens in this? क्या होता है? इसको लिखो ऐसे, everyone. अगर ये नहीं बनाना, at least write down in the points. Menstrual phase. First is menstrual phase, 1 to 5 days. Then what happened in this? Uterine wall breaks down. Blood along with broken uterine wall comes out through vagina. Write down. Write down in points. क्योंकि डायग्राम आई थिंक यू हैव ड्रॉन, कल आपने बना लिया था डायग्राम. सो नो इशू इन डायग्राम इफ यू डोंट ड्रॉ इट अगेन. नो प्रॉब्लम इन दैट. ठीक है. Ma'am, board is not visible. यस बेटा. Board is not visible. बोर्ड इज नॉट विजिबल. Blur है. अभी हुआ, ये पहले भी था बेटा. अभी हुआ है. मैं ऑन ऑफ करके देखती हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट. अभी भी है. ठीक है. ठीक है. ओके. यस बेटा, क्या हो गया? ओके. नाउ नेक्स्ट इज फॉलिकुलर और proliferative phase. That from 6 to 12 days. ठीक है, most appropriately we can say. So now let's note down about this also. So इसमें लिखो 6 to 12 days. Yes, yes बेटा. Yes बेटा. कोड क्लियर नहीं है. नाउ अब थोड़ा क्लियर लग रहा है. ओके, so I have zoomed it. ठीक है, so it will be more clear to you now. So follicular proliferative phase 6 to 12 days. ठीक है, what happened in this? Uterine wall rebuild. दोबारा से जो वॉल टूटी है, अब वो दोबारा बनेगी. एग, और या फिर एग लिखते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएटली. एग गेट्स मैच्योर in this phase.
Yes, is it done, beta? Now next is ovulation. अब मैं इसको इस साइड लेके जा रही हूँ, ठीक है, बिकॉज नाउ वी हैव टू वर्क ऑन दीज फेजेस, ठीक है. ओव्यूलेशन. नाउ ओव्यूलेशन में सिंपल वन थिंग, 13 to 15 डेज लिख दो इसमें, एंड राइट डाउन एग रिलीजेस फ्रॉम ओवरी. दोनों ओवरी से नहीं होगा, ओनली वन ओवरी. इट कैन बी लेफ्ट ओवरी, इट कैन बी राइट ओवरी. दोनों ओवरी से एक एक एग नहीं निकलता हर महीने, सिर्फ एक ओवरी से निकलता है. कोई भी हो सकती है, इट कैन बी लेफ्ट, इट कैन बी राइट, ठीक है. Now next is luteal phase, last phase, that is from 16 to 28 days. जो यूट्रिन बॉल है, now it's getting prepared for the pregnancy. वो हर महीने प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर होती है, as I told you yesterday also. So उसके लिए यूट्रिन बॉल थिक होनी चाहिए. So यूट्रिन बॉल get thickened. इसमें यूट्रिन बॉल थिक हो जाती है. Or if there is no pregnancy, or we can say if fertilization is not there, in case of no fertilization, uterine wall breaks down. वो break हो जाएगी, and then here comes next phase, that is menstruation. Is it clear to everyone? All these four phases are clear? Yes, I hope it is clear. फर्स्ट फेज में हमारी बॉल टूट गई है, इस वजह से बॉल टूटने की वजह से ब्लीडिंग हो रही है. नाउ आफ्टर दैट अगेन बॉल हैज टू रीबिल्ड. अब वो टूटी तो नहीं रह सकती, उसको दोबारा बनना होगा. सो नाउ इट इज हियर रीबिल्डिंग, ठीक है, दोबारा बन गई. जब हमारी बॉल बन गई, देन एग इज रिलीजिंग. तो एग रिलीज हो रहा है. जब एग रिलीज हो रहा है, तो जो बॉल है उसको और प्रोटेक्शन देने के लिए कि वो जो एग है शायद से फर्टिलाइज है, तो उसके लिए काइंड ऑफ कुशनिंग करने के लिए वो थिक हो रही है, ठीक है. बट इट्स ऑन assumption कि वहां पर प्रेगनेंसी या फर्टिलाइजेशन हुआ है, बट इट डजंट हैपन एवरी मंथ. तो इस वजह से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो बॉल फिर से टूट जाती है, एंड देन अगेन हम फर्स्ट फेज में चले जाते हैं. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये हो गया, सबका नोट डाउन हो गया? आई थिंक यू आर नोटिंग डाउन, many of you. Okay, take 1 minute more. और अब ये वाला जो हमने सारा किया है, यू कैन डू बाय योर सेल्फ. असाइनमेंट में आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है. इट इज रिलेटेड विद द क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ योर असाइनमेंट. खुद करना, क्योंकि यही इवेंट्स उसमें पूछे, यही डेज उसमें पूछे इन टेबुलर फॉर्म. सो यू जस्ट हैव टू नोट इट डाउन इन दैट कि नंबर ऑफ डेज, फेज एंड देन फीचर्स. सो यू हैव एवरीथिंग विद यू. ओके, डू बाय योरसेल्फ, ठीक है. तो ये वाला आपने खुद करना है. टेबल, as I told you, जब हमने फर्स्ट डे टेबल किया था, I told you to fill up those blanks here also in this table. This is the same table, ठीक है. Now let's move. Does menstruation occurs if fertilization and implantation occur? अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है या ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट कर जाता है. ब्लास्टोसिस्ट होता है ना जो इम्प्लांट करता है, हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन में. तो अगर वो इम्प्लांट कर जाता है इन यूट्रस, क्या मेंस्ट्रुएशन होगी? क्या ये साइकिल विल फॉलो? तभी होगी. फॉर दिस आ जाओ बी सेक्शन से. फ्रॉम द बी सेक्शन आई वुड लाइक टू कॉल
सारिका इज देयर, सारिका रोल नंबर 51 है 17 को 17, रोल नंबर 17 सारिका। यस बेटा, बस यस, यहीं खड़े हो ना माइक के पास, टर्न इट ऑन, ब्लू कलर का करो इसे। हाँ ठीक है। क्या मेंस्ट्रुएशन होगी अगर फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन होता है? मैम नो। वाई, वाई तो, व्हाट इज द रीजन, क्यों नहीं होगी? लेट्स से दिस इज अ ओवरी, हमने पढ़ा हुआ है इसके बारे में, ठीक है। यहाँ से एक फिम्ब्राइल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हमारा फेलोपियन ट्यूब है। नाउ हियर वी हैव आवर यूट्रस, ठीक है। ये रहा हमारा स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। यहाँ से एग रिलीज हुआ, ठीक है। वी आर सेइंग दिस एग, फर्टिलाइज एग नाउ, ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएटली। यहाँ पर यूट्रस की जो वॉल है जो थिक हो रखी है, ठीक है, थिक वॉल, इट इज गेटिंग इम्प्लांटेड हेयर, ये यहाँ पर इम्प्लांट हो चुका है। क्या इसमें मेंस्ट्रुएशन होगी? यू आर सेइंग नो, बट माय क्वेश्चन इज व्हाई। मेंस्ट्रुएशन कब होती है? जब एग फर्टिलाइज होता है या अनफर्टिलाइज होता है? अनफर्टिलाइज। है ना, तो एग जब यहाँ पर ही होता है, इम्प्लांटेशन तो हुई भी नहीं होती है, फर्टिलाइजेशन भी नहीं हुई होती है। तो व्हेन एग इज हेयर, यहाँ पर है, ठीक है, और यूट्रस की बॉल जो है यहाँ पर वो थिक हो रखी होती है, यहाँ पर इतनी मोटी हो रखी होती है, ताकि वो जो है बेबी जो है वो उसको काइंड ऑफ कुशनिंग मिल जाए, आप यही याद करो, ठीक है। सो यहाँ पर जो है अनफर्टिलाइज एग होना चाहिए, ठीक है, अनफर्टिलाइज एग, देन ओनली मेंस्ट्रुएशन विल अकर, तब होती है। तो यहाँ पर तो हमने पहले ही कह दिया फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन हो चुकी है, तब क्या मेंस्ट्रुएशन होगी? नहीं होगी। और मेंस्ट्रुएशन नहीं होने से ही जो प्रेगनेंसी का फर्स्ट कंफर्मेशन है वो पता लगता है। अगर किसी के मेंस्ट्रुएशन जो है, साइकिल जो है वो आगे को बढ़ जाए काफी दिनों से, लाइक वी कैन से 15 डे 20 डेज 1 मंथ, ठीक है, तो देन वी से कि देयर आर चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। ओके बेटा, गो, थैंक यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन देखो, देन आई कॉल फ्रॉम द सी सेक्शन। परनीत आ जाओ, 15 रोल नंबर, 15 रोल नंबर परनीत, सी सेक्शन। आई थिंक मर्ज है क्लास समवेयर, so Parneet is I think sitting in A section. Okay, what does it mean if suddenly menstruation start in pregnant women? अगर कोई प्रेग्नेंट है, ठीक है, और उसमें मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है, मींस ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो इसका क्या मतलब पड़ता है? व्हाट डज इट मीन? यस परनीत, प्लीज टर्न ऑन द माइक फर्स्ट फ्रॉम द जूम। परनीत कौन सी क्लास में, ए सेक्शन में बैठा है? नो, विच सेक्शन प्रेजेंट है परनीत? सी सेक्शन कहाँ कहाँ बैठा है, हैंड रेज करो, वेयर इज सी सेक्शन? जी में बैठा है, और ओनली 2-3 बच्चे ही हैं फ्रॉम द सी सेक्शन, बाकी कहां पर है बेटा सी सेक्शन के बच्चे? वेयर दे आर? इन बी सेक्शन आई कैन सी few students are raising their hand, only 2-3 girls. Parneet is not there from the C section. Ma'am, C-section is merged in all sections. Okay, so it's merged, but beta I am seeing only, yes beta, ए सेक्शन में है। Parneet है। Sir, I was asking, you know, since 2 to 3 minutes, huh? Where were? आपको खड़े होना चाहिए ना, आपका नाम लिया जा रहा है, and I'm asking every section. Beta, you know the time limits. We have certain time limits. So yes, what does it mean if suddenly menstruation starts in pregnant women? क्या होगा अगर प्रेग्नेंट विमेन है जिसमें फर्टिलाइज्ड एग है,
स्टिल ब्लीडिंग हो रही है। सो व्हाट इज द रीजन, क्या हो सकता है? उसमें तो प्रेगनेंसी में तो ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, मेंस्ट्रुएशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर मंथ जो है फीमेल बॉडी में जो है इन द लास्ट फेज, ओके, इफ वी टॉक अबाउट द लास्ट फेज दैट इज ल्यूटियल फेज, वो तो हमेशा प्रिपेयर होता है फॉर द प्रेगनेंसी, यूट्रस वॉल हमारी थिक हो जाती है, एंड दैट इज व्हाट हैपन हियर इन द प्रेग्नेंट वुमेन कि हाँ भी प्रेगनेंसी होगी, फर्टिलाइज एग मिल गया, इम्प्लांटेशन होगी, बट स्टिल इट्स ब्लीडिंग। व्हाट डज इट मीन, व्हाट इट्स टेलिंग? It is telling the failure of pregnancy, chances of failure of pregnancy, कि प्रेगनेंसी जो है वो खतरे में है, मिसकैरेज होने के चांसेस हैं, देयर इज सम लूप, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मैं पीछे वाले डायग्राम में जाऊं, सो अगर जो ये इम्प्लांटेशन है शायद से ये प्रॉपर नहीं हुई है, इसके साथ कुछ हार्मोन्स होते हैं जो रिक्वायर होते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरोन हो गया, एक और होता है बीटा एचसीजी होता है, मे बी वो प्रॉपरली नहीं बने कि प्रेगनेंसी को मेंटेन कर सके। तो उस केस में क्या होता है, जो ये फर्टिलाइज्ड एग है, जो ये एम्ब्रियो बनता है, ये भी बॉडी से ब्लीडिंग के साथ और यूट्रस वॉल फिर से टूट जाती है और बाहर निकल आता है। तो इसको हम कहते हैं इन साइंटिफिक लैंग्वेज मिसकैरेज, ठीक है, मिसकैरेज होना, ठीक है। सो क्या हो जाएगा इसका आंसर, चांसेस ऑफ मिसकैरेजेस विल बी हाई, यहाँ पर मिसकैरेजेस के चांसेस हाई हो जाएंगे, ठीक है। सिट डाउन बेटा। तो एवरीवन बस दिमाग में एक चीज याद रखनी है, प्रेगनेंसी मींस फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन मींस अनफर्टिलाइज्ड एग, और in case of pregnancy there is menstrual flow, that means chances of failure of pregnancy, ठीक है, और chances of miscarriage। now आपने चैप्टर किया हुआ ये नो मिनार्क, मिनार्क मीन्स स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, जो स्टार्ट होता है। एक और आपने वर्ड पढ़ा होगा दैट इज मेनोपॉज, मेनोपॉज मीन्स एंडिंग, खत्म होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है अब नहीं हो रही फीमेल में। बट व्हाई इट हैपेंस, क्यों होता है ये, किसी को पता है? आपने ये तो पढ़ लिया होगा फ्रॉम द 45 टू 55 एज, है ना, ये जो ईयर्स होते हैं फीमेल के, उसमें दे एक्सपीरियंस दिस थिंग कि उनकी जो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसे अभी आप में चेंजेस हो रहे हैं, यू आर फीलिंग द चेंजेस, वैसे ही उस टाइम भी होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है, सेम चीज, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम थिंग यू विल एक्सपीरियंस व्हेन यू विल बी इन दिस एज, व्हेन दिस हार्मोनल जो सारी साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अबाउट टू एंड। अब ये होती किस वजह से है उसको नोट करो, ठीक है। देर आर टू रीजन है जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है हमारी बंद होती है। फर्स्ट इज जिस हार्मोन की वजह से हो रही है, अभी मैं हार्मोन्स के नाम नहीं बता रही, फर्स्ट लिखो स्टॉपेज ऑफ सेक्स हॉर्मोन्स, जो हॉर्मोन्स इसको रेगुलेट कर रहे हैं वो बंद हो जाते हैं। सेकेंड इज, एंड द सेकेंड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दैट ओवरीज में जितने एग्स थे वो यूज हो चुके हैं, क्योंकि फीमेल बॉडी एग्स नहीं बनाती, जब वो पैदा होती है तभी उनकी ओवरीज में ऑलरेडी दे हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एग, उनको पहले से मिल जाता है, मतलब उनका स्टॉक बना होता है ओवरीज में, वो हर महीने सिर्फ मेच्योर होता है। In puberty it started to get mature, we have or we born with the eggs, हमारे एग्स जो है फीमेल्स में जब हम पैदा होते हैं तभी बन चुके होते हैं, उससे पहले व्हेन वी आर इन द बूम, मदर्स बूम, जब हम मदर के बूम में होते हैं तभी वो एग्स हमारी ओवरीज में होते हैं, ठीक है। सो बट इन बॉयज स्पर्म्स वो ऐसा नहीं है, ठीक है, दे आर नॉट फॉर्म्ड सिंस देयर बर्थ, ठीक है, उनके जो है जो मेल इन मेल स्पर्म्स कैन फॉर्म एवरी डे, ठीक है, बट इन फीमेल्स एक एग मेच्योर होता है पर मंथ, और हमारे पास लिमिटेड स्टॉक होता है, ठीक है, एंड दैट लिमिटेड स्टॉक
एक्सपायर और कंज्यूम बाय द एज ऑफ 45 टू 55 ईयर्स। तो फिर 45 से 55 ईयर्स तक वो ऑलमोस्ट एम्प्टी हो चुका होता है। तो जब एग्स ही नहीं होंगे तो क्या मेच्योर होगा? ठीक है, जब वो मेच्योर ही नहीं होगा तो यूट्रस वॉल वगैरह कुछ भी ये प्रोसेस नहीं होगा, नो मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन खत्म हो जाती है। सो सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं, ऑल द एग्स इन ovaries used, or we can say consumed, whatever you can write, तो सारे अभी तक यूज हो चुके हैं। तभी जो फीमेल में फर्टिलिटी विंडो होती है, फर्टिलिटी विंडो मीन्स उसी में जो है चांसेस आर हैविंग मोर बेबीज आर स्पेसिफिक। तभी कहते हैं कि आफ्टर 30-35 देयर आर लेस चांसेस। जैसे जैसे एज बढ़ती है एग्स जो है कम होने लगते हैं। तो वी कैन से लाइक मोस्ट फर्टाइल एज इज नाउ बिकॉज 21 इज एलिजिबल एज ऑफ मैरिज। आपको पता होना चाहिए आपकी उम्र एटलीस्ट 21 ईयर्स की होनी चाहिए, मेल एंड फीमेल फॉर बोथ। पहले 18 था लड़की के लिए और 21 था बॉयज के लिए, नाउ इट्स कॉमन फॉर बोथ। दोनों की उम्र 21 होनी चाहिए, ओनली देन यू कैन गो फॉर मैरिज एंड इट विल बी लीगल। ठीक है, तो आफ्टर दैट एज वी कैन से कि 22 टू 30 एज जो होती है मोस्ट फर्टाइल एज होती है। ठीक है, तो इसमें जो है एग्स अच्छे होते हैं। लेकिन आफ्टर दैट बिकॉज विद द एज, विद द वी कैन से एनवायरमेंटल फैक्टर, देयर आर मेनी फैक्टर्स, तो एग की क्वालिटी भी डिक्रीज हो जाती है एंड देयर आर लेस चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सो दैट इज हैपन नाउअडेज। ये लिख लिया बेटा दीज 2 पॉइंट्स। I have taken few questions, मैंने कुछ questions लिए थे तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। Now coming to the one more thing, that sex determination. How can we determine sex of the baby? Sex determination of the baby. सबसे पहली बात, फीमेल का सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई रोल नहीं है। इट्स अ मिथ। जो पुराने होता था ना कि हाँ इस जो फीमेल है इसके जो है बस लड़के ही हो रहे हैं या लड़कियां ही हो रही है, नो, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ फीमेल। फीमेल के पास तो चॉइस है ही नहीं, क्योंकि उसके जो एग है उसके पास सिर्फ 2 क्रोमोसोम है। ठीक है, सॉरी, ये फीमेल का एग है, इट हैज ओनली एक्स एक्स क्रोमोसोम, उसके लिए पास तो है ही सिर्फ एक्स क्रोमोसोम। बट इफ वी टॉक अबाउट मेल, ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट मेल स्पर्म की बात करें, इट कैन हैव एक्स और इट कैन हैव वाई क्रोमोसोम। इसके पास एक्स और वाई क्रोमोसोम, 2 अलग क्रोमोसोम्स, एंड दिस इज द वाई, और ये वाई क्रोमोसोम है जो कि लड़के को लड़का बनाता है। ठीक है, और बाकी जो एक्स है इट इज फॉर द फीमेल। तो फीमेल के पास तो वैसे ही वाई नहीं है, सो फीमेल इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन मेकिंग बॉयज। ठीक है, फीमेल का कंट्रीब्यूशन बॉयज या गर्ल होने में नहीं होता, इट्स ओनली द बॉयज स्पर्म और बॉयज क्रोमोसोम who determines whether the baby will be boy or baby will be girl। ठीक है, सबसे बड़ी बात। अब ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन क्या होता है, 50 हमें पता है, आधे हम मदर से आते हैं आधे हम फादर से आते हैं। सो लेट्स टेक केस 1। हम केस 1 लेते हैं जिसमें मदर ने पहले हमें ये वाला एक्स दे दिया। ठीक है, ये एक्स आ गया, और फादर जो है उसके पास एक्स वाई है, और उसने जो है एक्स दे दिया, इसका भी एक्स आ गया हमारे पास। जो बेबी है अब वो क्या होगा, डबल एक्स मीन्स जिसमें वाई नहीं है, इट मीन्स बेबी क्या होगा, गर्ल होगा। बेबी क्या होगा, इट विल बी गर्ल, गर्ल चाइल्ड। ठीक है, नाउ कमिंग टू केस 2। केस 2 लेते हैं, लेट्स टेक केस 2। नाउ इन द केस 2 मदर ने दिया एक्स, उसके पास तो है ही एक्स, शी विल गो गिव ओनली एक्स। नाउ स्पर्म से आया वाई,
फ्रॉम स्पर्म इट कम्स Y। अब देखो क्योंकि अब ये दोनों अलग है, X एंड Y है, सो नाउ बेबी वुड बी बॉय, सो इट विल बी बॉय। ठीक है, बॉय बनेगा। सो इट्स द मेल हुज क्रोमोसोम विल डिसाइड कि बच्चा क्या होगा, इट्स नॉट द फीमेल। ठीक है, दिस इज हाउ वी डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बेबी। ठीक है, तो ये भी आपको आना चाहिए बेटा बनाना ऐसे। सो यू कैन से पहले उसमें एक एक्स ले लिया, यहाँ से एक एक्स ले लिया, वहां से एक एक्स ले लिया, यहाँ से वाई ले लिया। सो यू विल गिव टू केसेस, एक में हमारे पास बेबी गर्ल और एक में बेबी बॉय आ गया। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो अब हम वर्कशीट पे आ जाते हैं। लेट्स कम टू द वर्कशीट। ठीक है, तो वर्कशीट में वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि टेबल वी हैव डन, टेबल हमने डिटेल में कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द हार्मोन विच वुड बी रिलीज ड्यूरिंग द फॉलोइंग सिचुएशंस। तो ये मैंने आपकी क्लास में किसी के साथ किया था कि वॉल में कोई कीड़ा है ना। सो ही गेव द रिएक्शन दैट टाइम, आई डोंट नो विच सेक्शन। ठीक है, तो एक सेक्शन में हमने किया था एंड वी हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग, हमने सबने देखी है वो चीज। सो फॉर दिस सी सेक्शन से आ जाओ लविका, लविका फ्रॉम द सी सेक्शन। ओके, टर्न ऑन द माइक बेटा। सो ए फ्राइटेंड पर्सन, जो डरा हुआ पर्सन है, कौन सा हार्मोन निकलेगा? जब हम डरे होते हैं फॉर द डिफेंस, विच हार्मोन इज रिलीज्ड? यस लविका, आई थिंक लविका इज सिटिंग इन ए सेक्शन। She is absent. ओके, लविका इज एब्सेंट। ओके, फ्रॉम डी सेक्शन से आ जाओ देन। ईशान आ जाओ, 26 रोल नंबर। डी से ईशान 26 रोल नंबर। यस बेटा, इफ फ्राइटेंड पर्सन, डरा हुआ जो है कोई, किसी चीज से आप डर जाओ, जैसे अगर अभी सपोज करो आपके नीचे से यहां से जो सांप आ जाए, तो क्या होगा रिएक्शन? डरोगे या मारोगे? दो ही चीजें होंगी, दोनों में यही चीजें होंगी। सो कौन सा हार्मोन आपसे ये सब करवा रहा है? यस, Adrenal. कौन सा बेटा? बेटा माइक ऑन करके बोलो उसको, वो क्या बोल रही है वो छोड़ो, आप अपना खुद का बोलो। Adrenal. एड्रीनालिन, एड्रीनालिन, एड्रीनल तो ग्लैंड है। ठीक है, एड्रीनालिन। सेकंड पढ़ो। सेकंड क्या है, पढ़ो जरा। ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड टू एडल्ट, जैसे अभी आप एडल्टहुड की तरफ जा रहे हो, तो इस टाइम कौन सा जो हार्मोन आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा जो वर्क कर रहा है? ग्रोथ कौन हार्मोन देता है? जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। मैं ग्रोथ हार्मोन. That's good, growth hormone, that's nice. Now coming to, हमने मेटामॉर्फोसिस रिप्रोडक्शन में कर ली। हमने कहा था क्योंकि उनके जो जो जिसको वो बर्थ देते हैं, दे डू नॉट लुक लाइक एडल्ट, है ना। वो वैसे तो नहीं दिखते, जो अगर हम मॉस्किटो की बात करें, हम बटरफ्लाई की बात करें, तो उनके एग से जो निकलता है वो उनकी तरह नहीं लगता, उनकी शक्ल कुछ और होती है, स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, सो दे अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। अब जो ये चेंजेस होता है उनके स्ट्रक्चर में, कौन से हार्मोन से होता है? इट्स सेम फॉर द फ्रॉग ऑल्सो, सी और डी का सेम आंसर है। आयोडीन. आयोडीन इज अ हार्मोन, आयोडीन इज अ हार्मोन। अच्छा चलो वो छोड़ो, अपने नेक पे हाथ रखो, पुट योर हैंड लाइक दिस। यहाँ पर कौन सा ग्लैंड है? विच ग्लैंड इज हियर? बटरफ्लाई शेप। थायरॉक्सिन. अब देखो, हार्मोन को बोल दिया ग्लैंड, थायरॉक्सिन इज ए हार्मोन और ग्लैंड, थायरॉक्सिन इज ए हार्मोन, ग्लैंड कौन है? थायराइड।
थायराइड इज ए ग्लैंड, हार्मोन कौन सा रिलीज कर रहा है? थायरोक्सिन, ठीक है। और आयोडीन क्या है? इट्स अ मिनरल, जो कि उसको चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, जो नमक में मिलता है। पढ़ो उसमें, जब नमक लेके आते हैं घर में लिखा होता है आयोडाइज सॉल्ट, मींस आयोडीन उसमें डला हुआ है, ठीक है, आयोडाइज सॉल्ट कहते हैं। सो दोनों का आंसर आ जाएगा थायरोक्सिन। सिट डाउन बेटा, इट्स थायरोक्सिन, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बाद रेस्ट वी विल डू टुमारो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, John and Radha were classmates since childhood. But when Radha became 11 years old, she developed a little swelling on her neck. She visited the doctor who started medication for her. After a few years, John also developed slight protrusion, means जो जैसे आपका निकला हुआ था ना गले में वो, on his throat. He got worried and went to the doctor, but the doctor assured him that it was a normal feature in boys while they are growing up. So first question है, what is the cause of swelling in John? So E section से आ जाओ, from the E section. E section से आ जाओ अर्नव, अर्नव from the E section. यस बेटा, थर्ड का फर्स्ट है, व्हाट इज द कॉज ऑफ स्वेलिंग इन जॉन? जॉन के गले में जो यहाँ स्वेलिंग हो रखी है, क्या रीजन है उसका? यस बेटा, आई एम नॉट एबल टू हियर यू प्रॉपर्ली, ढंग से बोलो बेटा, थोड़ा लाउड और क्लियर। एडम्स एप्पल है, अब वो किस वजह से है? कि कौन सा हार्मोन निकल रहा है बॉडी से जिसकी वजह से एडम्स एप्पल बना? सेक्स हार्मोन कौन सा है इन मेल? विच हार्मोन? Testosterone. So you can say due to testosterone, Adam apple developed, ठीक है, उसकी वजह से एडम एप्पल बना, ठीक है। Sit down. E section से आ जाओ युवराज, युवराज from the E section. What's the matter of laughing? Yes. Yes. So युवराज, what is the cause of swelling in Radha? राधा के गले में क्यों swelling है? Lack of iodine. तो iodine की वजह से क्या होता है? White color. So we can say that due to deficiency of iodine, due to deficiency of iodine, her thyroid gland got affected and result in swelling of neck called void, ठीक है। तो ये हो गया। लास्ट इज नेम द डिजीज राधा इज सफरिंग फ्रॉम एंड हाउ इट कैन बी क्योर। तो हमने डिजीज का नाम लिख लिया है, इट इज गोइटर, एंड हाउ इट कैन बी क्योर बाय टेकिंग डाइट हैविंग आयोडीन इन इट। ऐसी डाइट जिसमें आयोडीन भी हो, ठीक है, अपनी डाइट में आयोडीन भी ले, तब उसका जो है थायराइड ग्लैंड ठीक होगा और उसकी वजह से थायरोक्सिन भी बनना सही से शुरू हो जाएगा। सो देन इट विल बी क्योर, ठीक है। आज का जो आपको होमवर्क है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 टेबुलर फॉर्म में खुद करना है। हमने पिक्चर फॉर्म में कर लिया, ठीक है, इसी का आपने करके आना है। रेस्ट वी विल डू टुमारो, ठीक है, ठीक है बेटा। ओके, योर क्लास आई थिंक टाइम इज ऑल्सो ओवर, ठीक है। बाय एवरीवन।